ये આપણે વાત છે કે સ્વીકૃતિ કે ભાવ में जीना ही सुख है। તો એ પહેલા તો આપણે એને અત્યારે જ્યારે વાત કરી છે ત્યારે સ્વીકૃતિ કે ભાવ में जीना ही सुख है તો આને એક પ્રસ્તાવના રૂપમાં મૂકવામાં આવેલો છે, જેને આપણે આપણા અંદર જાંચવાનું છે કે ભાઈ સ્વીકૃતિ આવું છે કે નથી મારા અંદર અત્યારે। અને એમાં કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હોય, પોઝિટિવ હોય, નેગેટિવ હોય, દરેક એક્ઝામ્પલ માટે આ સેન્ટેન્સ અત્યારે લાગુ પડે છે। હવે પ્રશ્ન એ છે કે એ સેન્ટેન્સ જે છે તો સ્વીકૃતિ કે ભાવ में जीना એની નિરંતરતા ક્યાં આગળ થઈ શકશે, કઈ રીતે થઈ શકશે, એ ક્વેશ્ચન આખો અલગ છે। અને એ વ્યવસ્થામાં જ નિરંતરતા થઈ શકશે એ આપણે આગળ આવતા 2-3-4 દિવસોમાં સમજીશું। પણ જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે ઇવન એક નાનામાં નાના ક્ષણની વાત કરીએ તો આ સેન્ટેન્સ ત્યાં આગળ લાગુ પડે જ છે। એવું એક પણ એવી ઘટના કે એક પણ એવી વસ્તુ કે સ્થિતિ એવી નહીં હોય કે જેનો અત્યારે જેમાં આ સેન્ટેન્સ લાગુ નહીં પડતું હોય। અને એવું હોય તો અત્યારે આપણે એ વસ્તુની ચર્ચા કરીએ ને એને આપણે અત્યારે જ ક્લિયર કરીએ। એમાં અત્યારે અમારું જે વખતે બ્રેક ચાલુ હતો એ વખતે એક પોઈન્ટનું ડિસ્કશન થયું કે આપણે જ્યારે સ્વીકૃતિની નિરંતરતાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે હું કોઈ વસ્તુની કે હું કોઈ વાત કરું તો સામેવાળો માણસ અસ્વીકાર કરે છે તો સામેવાળા માણસ સ્વીકાર કરે કે અસ્વીકાર કરે એને મારા સાથે તો કઈ રીતે લેવા દેવા, તો એની નિરંતરતા કઈ રીતે થઈ શકે, તો સંભવ જ નથી। પ્રશ્ન અહીંયા આગળ એકદમ વેલિડ છે કે સામેવાળો દર વખતે સ્વીકાર ના કરે પોસિબલ છે, પણ સામેવાળાની સ્વીકૃતિની વાત નથી થઈ રહી, અહીંયા આપણા અંદર જે સ્વીકૃતિ છે એની વાત થઈ રહી છે। એક એક્ઝામ્પલ, નાના એક્ઝામ્પલથી આપણે વાત કરીએ કે બે મિત્રો છે અત્યારે બ્રેકમાં બેઠેલા છે અને એમને ચા પીવા જવું છે। એક મિત્રે પૂછ્યું કે ચલો ચા પીને આવીએ, તો હવે એક ઘટના એવી છે કે એમાં બીજો ના પાડે છે કે મારે ચા પીવા નથી જવું। હવે મેં ના પાડે છે એટલે એને ના પાડી એટલે એને અસ્વીકૃતિ અત્યારના લેવલે એ વસ્તુની થઈ કે ચા નથી પીવી। પણ જો એને ના પાડી, એ ના પાડવાની સ્વીકૃતિ છે કે અસ્વીકૃતિ છે એના ઉપર એનું પોતાનું સુખ નિર્ભર કરે છે। હું અત્યારે ચા પીવા નથી જતો એવી મારા અંદર જો સ્વીકૃતિ હોય અને હું ના પાડું છું તો વાંધો નથી, પણ મેં ના પાડી દીધી ને પેલો ચા પીવા જતો રહે એના પછી અંદર ક્યાંક ના ક્યાંક એવું થવું થાય કે ભાઈ નહીં મારે જવું જોઈતું હતું, મારો મિત્ર જે એને મને કીધું, તો તમને અત્યારે તમે જે ડિસિઝન લીધું એ વસ્તુની એક ક્ષણે તમને સ્વીકૃતિ નથી એટલે તમને એવું લાગે છે કે અત્યારે કે એટલે તમને એ વખતે દુઃખ થાય છે। તમને જો એ વસ્તુની સ્વીકૃતિ હોય તો સહજ રીતે એવું થાય કે નહીં ચા પીવા નથી ગયો એનો કોઈ વાંધો નથી। કોઈ વસ્તુને અસ્વીકાર કરવી એનો મતલબ એમ નથી કે દરેક વસ્તુ જે સામે આવે છે એને સ્વીકાર જ કરવી। અસ્વીકારની પણ સ્વીકૃતિ એ અસ્વીકારની સ્વીકૃતિ છે કે અસ્વીકારની અસ્વીકૃતિ છે એના ઉપર નિર્ભર છે તમારું અત્યારે સુખની વાત જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે। નોર્મલ આપણા જે ઘરના અત્યારે બધા કાર્યક્રમો ને બધું થતું હોય એમાં હું તમને કહું કે સાંજે જમવાનું બનતું હોય, દિવસે જમવાનું બનતું હોય, એમાં શાક આ બનતું હોય ને પેલું બનતું હોય, ભાવતું અભાવતું હોય। હવે એમાં એવું છે કે જે સબ્જી કે જે શાક ઘરમાં બનેલું છે એ વસ્તુ તમને ભાવે છે નથી ભાવતી એના કરતાં વધારે તમે શું ભાવથી ખાઓ છો એના પર તમારું સુખ અને દુઃખ નિર્ભર થાય છે। જો તમારો ભાવ એવો હશે કે ના મારે આ શું બનાવી દીધું ને આ કેવું છે, તો અત્યારના લેવલે જ્યારે એ વસ્તુની અસ્વીકૃતિ હશે, એ સમયની એ ઘટનાની અસ્વીકૃતિ હશે તો તમને એ દુઃખ થશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તમને અંદર એવું ફીલ થશે કે અંદર અંતર્વિરોધ થશે। અને જો એ વસ્તુની અત્યારે કે એને પત્નીએ બનાવ્યું છે શાક, સરસ છે શાક અને મને નથી ભાવતું પણ હું જમી લઉં છું, તમે એ વસ્તુને સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર કરી લો। ટાઈમ નહોતો, ટાઈમનો અભાવ હતો એના લીધે બનાવી લીધું છે અને જો સ્વીકાર કરી લો તો તમને એ ઘટનામાં એ વખતે અંતર્વિરોધ નહીં થાય ને એ વસ્તુની જે અંતર્વિરોધ ના થયો ને અંદર તમને સ્વીકૃત થાય એ જ વસ્તુને આપણે કહીએ છીએ કે સુખ અને દુઃખની વાત છે। એટલે આમાં જ્યારે આપણે નિરંતર સ્વીકૃતિની વાત કરીએ છીએ ત્યારે નિરંતર સ્વીકૃતિ કઈ વસ્તુની થઈ શકશે એ આખી વ્યવસ્થામાં આગળ આવશે। અને બીજી વસ્તુ કે જેટલી લાંબી હાલના લેવલે જેટલા લાંબા સમય સુધી તમને સ્વીકૃતિ કોઈ પણ વસ્તુની રહે તો તમને એટલા જ લાંબા સમય સુધી સુખ રહેશે। જેટલું અંદરથી હું તમને કહું કે જેટલી વધારે સ્વીકૃતિ અંદરથી થાય એક જ ક્ષણમાં એટલું જ વધારે સુખ હશે। જેટલી ઓછી સ્વીકૃતિ, ઘણી વખત એવું થાય કે એક મિત્ર મળ્યો છે, ઓકે હા હેલો કરીને આપણને મળ્યો છે ને વાંધો નથી, પણ એક આપણનો ગાઢ મિત્ર જે એકદમ નાનપણનો મિત્ર હતો એ મળી ગયો તો આપણને એવું થાય કે નહીં અત્યારે એકદમ આપણને ખુશી થઈ જાય। તો જે ક્ષણે તમારી જેટલી ઊંડી સ્વીકૃતિ હશે, મતલબ એ જે કહેવાય છે કે जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा सुख, जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा सुख।
એટલે એ સ્વીકૃતિ જે છે એ પોતાની છે અને પોતાના અંદર જ જોવાની વાત છે. એ સામેવાળા અત્યારે સ્વીકૃત કરે છે કે અસ્વીકૃત કરે છે એના સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી એને. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे भी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया. भाषा ठीक है. देखिए मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मैं एक भाषा जान रहा हूँ, हिंदी. आपके साथ क्या, आप हमसे ज्यादा समृद्ध हैं कि आप गुजराती भी जान रहे हैं. ठीक है, बढ़िया. देखिए क्या होता है कि हम एक तरीके से जी रहे होते हैं. हम जब से धरती पे आए तब से हम एक तरीके से जी रहे होते हैं और हमारे में बहुत सारे पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास बने हुए हैं. मतलब आज तक जो हम जिंदगी जिए ही हैं. कोई ऐसा थोड़ी रोज दुखी हुए हैं. अगर दुखी हुए भी हैं तो हम उसको कभी स्वीकारे नहीं है कि दुखी हुए हैं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिंदगी तो चल रही है. हमारे यहाँ कोई पूछता है जी कैसे हैं, बोले बस कट रही है. आप क्या बोलते हैं? मजामा. हाँ ये देखिए मजामा. केम छो? मजामा. तो यहाँ तो मजा ही है. अभी हम लोग क्या भी पहले बोलते थे क्या हाल चाल है, बोलते ठीक है. तो इसके बोलने के दो तीन तरीके हैं. कि पूछा क्या हाल चाल है, ठीक है. फिर बोला कोई दूसरे व्यक्ति से पूछा क्या हाल चाल है, ठीक है. तीसरे से पूछा कोई क्या हाल चाल है, ठीक है. शब्द वही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आपको क्या पकड़ में आ रहा है? मजामा मजामा मजामा. तो अभी हमने जिंदगी में जो ज्यादा झेल सके उसको ज्यादा बड़ा माना हमने. तो अव्यवस्था में झेलने की ताकत बढ़ानी पड़ती है. क्या करना पड़ता है? झेलने की ताकत बढ़ानी पड़ती है. उसी को समझौता बोलते हैं, समझौता पूर्वक जीना. और जहां झेलना नहीं है, हम एक दूसरे को समझते हुए बढ़िया से तालमेल से हारमोनी से जी रहे हैं, वहां स्वीकृति है. तो स्वीकृति का मतलब जहां कुछ भार है ही नहीं है, भारी नहीं है. तो हम एक तरीके से जी रहे होते हैं, आज तक जी ही रहे हैं. तो उसमें अब एक नया प्रस्ताव आया है हमारे सामने. जो प्रस्ताव ये कहता है कि आप जो कुछ भी काम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं. जिसमें सुख की संभावना नहीं है उस काम से आप दूरी बनाते हैं, करना नहीं चाहते हैं. करना पड़ता है वो अलग बात है, आप करना नहीं चाहते. जिस काम में सुख की संभावना होती है उसको आप करना ही चाहते हैं, बल्कि ज्यादा करना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उसमें लगे ही रहना चाहते हैं. जो नौकरी आपको पसंद की मिल गई उस नौकरी को करना चाहते हैं. ये अलग बात है कि जिसको भी नौकरी मिली एक समय के बाद उसको बोझ समझने लगता है. जैसे मैं शिक्षक समुदाय से हूं, तो बहुत सारे शिक्षक अपने शिक्षक की नौकरी को बोझ समझते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो. एक भारी सा काम, जानते नहीं है नौकरी है. जबकि मैं कहता हूं कि शिक्षक होना गर्व की बात है. शिक्षक में ही वो ताकत है जो बहुत सारे लोगों से बात करता है, ज्ञान की बात करता है, समझ की बात करता है. बाकी कोई पेशा नहीं ऐसा है जो ज्ञान की बात करेगा, समझ की बात करेगा. आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे क्या बात करेगा? कहां दर्द हो रहा है, कितने दिन से दर्द है,
दर के साथ और क्या था, जरा ये जांच करा के लाइए। जांच करा के लाते हैं, बोलते जी आपके ब्लड में एक काउंट बिगड़ा हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये दवाई खाइए। कि कोई ज्ञान की बात करता है कि नहीं जी 4 अवस्था होती है, उसमें मानव है, इसने कोई अव्यवस्था की है, कोई आहार विहार गड़बड़ किया है। कोई डॉक्टर खास कर एलोपैथ में तो एकदम नहीं बताता कि आप कोई आहार विहार गड़बड़ किए हैं। एलोपैथ कोई पथ्य परहेज नहीं बताता और कभी नहीं बताता कि आपके खाने की गड़बड़ी से आपको बीमारी हुई है। हो गया भाई, चलो दवाई खाओ। तो हम लोगों से लोग पूछते हैं जी पेट में थोड़ी सी दिक्कत है, भारी है, क्या खाएं कि ठीक हो जाए? तो क्या उत्तर आएगा? तो मेरा उत्तर आता है कुछ ना खाओ, ठीक हो जाएगा। लेकिन एलोपैथ में ऐसा उत्तर नहीं आएगा। वो बताएंगे ये खाओ, ये दवाई खाओ, ऐसा खाओ, ऐसा खाओ। जबकि अगर आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम, आपको बुखार हुआ है, तो आप पहला काम करिए कुछ मत खाइए, छोड़ दीजिए, पानी जम के पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नमक नींबू चीनी डाल के पीजिए। मतलब शरीर में फ्लड मेंटेन करिए और टेम्परेचर मेंटेन करिए। खाना छोड़ दीजिए, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हमको धैर्य नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमारा खाना न छूटे। एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं ये हमारी मानसिकता को जानते हैं कि इनका खाना छुड़ाओगे तो ये भाग जाएगा, कल आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय प्रजनन से ही सुखी होने के प्रयास में लगा हुआ है। उनको पता है उनको पता है कि आपको आहार से सुखी होते हैं, इसलिए आपका आहार नहीं बंद कराते, बोलते खाओ, साथ में दवाई भी खाओ। तो हम एक तरीके से जीते आए हैं और वो तरीके से हमको ऐसा नहीं है जितने लोग यहां बैठे हैं सबको अपने जीने के तरीके पे कोई शिकायत है या कोई दुखी होकर के यहां आए हैं कि सारे लोग बहुत दुखी थे और यहां आ गए। ऐसा तो है नहीं। हां, लेकिन मैं जिस भी तरीके से जी के देखा, मुझे कहीं न कहीं तो एक काला दीवाल मिलता है। जिसने जो सफलता बताया उस पर मैं आगे बढ़ा, एक समय के बाद हमको रास्ता फिर नहीं दिखता। जैसे आपको जो भी आपने अपने जिंदगी के लिए लक्ष्य लिया होगा, उस लक्ष्य पे जब तक आप दौड़ते हैं, भागते हैं, एक रोमांच रहता है, लेकिन जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वो उतना सुखदायी नहीं होता। जो पद को आप पाना चाहते हैं, जब तक उस पद को पाए नहीं रहते हैं तब तक एक रोमांच होता है, एक अंदर अंदर अच्छा लगता है, लेकिन जब उस पद को पा जाते हैं तो आपको लगता है कोई बड़ी चीज नहीं थी, इसके लिए जो मैंने लगाया वो कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो दौड़ने का एक रोमांच होता है, लेकिन उस पद पे उस धन को पा लेना, उस सुविधा को पा लेना, उस जगह पहुंच जाना जिसको हमने सफलता माना है, उस सफलता को पा लेने के बाद हमको नहीं लगता है कोई बड़ी चीज थी। क्यों? समस्याएं जस की तस हैं, नहीं तो और तो बढ़ गई हैं, 10 समस्याएं और बढ़ गई हैं। समाधान तो नहीं हुआ। जिस समाधान की आस में मैं अपने को शिक्षा में झोंका, जिस समाधान के आस में मैंने अपने को व्यवसाय में झोंका, जिस समाधान के आस में मैंने अपने को नौकरी में झोंका, जिस समाधान के आस में मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, वैराग्य हो गया, गुफाओं में गया, साधना किया, बहुत कुछ किया, तो या तो समाधान बता नहीं पाए या तो शायद वो समाधान नहीं हुआ। तो एक्चुअली हम आस में तो काम किए, लेकिन वो चीज हमको मिला नहीं। क्या नहीं मिला? समाधान नहीं मिला। तो सुख का एक नाम समाधान भी है। समाधान बराबर सुख। अब आप जांच के देखिए, जब जब आपकी जिंदगी में समाधान हुआ है, चाहे वो सुविधा के अर्थ में, चाहे संबंधों में जी करके,
तब तब आपको जो फीलिंग आई है वो फीलिंग अच्छी आई है कि बुरी आई है? वो फीलिंग अच्छी आई है कि बुरी आई है? एक अच्छी फीलिंग आई है, उसी फीलिंग का नाम है सुख। और ये सुख कितना चाहिए? निरंतर। तो समाधान कितना चाहिए? पूरा। समाधान के साथ निरंतर शब्द नहीं जुड़ता, क्योंकि एक समाधान अगर हो चुका है तो वो निरंतर बना ही रहता है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, ये हमको पता चल गया, समझ में आ गया, तो ये मेरे साथ बना ही रहता है। तो समाधान निरंतर चाहिए, ये भाषा नहीं है, समाधान पूरा चाहिए। तो सुख निरंतर चाहिए तो समाधान पूरा चाहिए। जांच के देखिए। भैया यहाँ समाधान का हिंदी में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गुजराती में समाधान का मतलब ऐसा होता है कि दो बंदों के बीच में टसल हो गई है तो समझौता, उसको समाधान बोलते हैं गुजराती में। अच्छा, मतलब दो बंदों के बीच में तो उनको बैठा करके सामने सामने प्रॉब्लम सॉल्व करवा दे, उसको समाधान करते हैं। अच्छा, सेटलमेंट, अच्छा, उसको समाधान बोलते हैं। तो ये अच्छा। तो समाधान को अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन जब पूरा समाधान होता है तो उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। यानी तो समाधान को उल्टा अगर समझेंगे तो समस्या मुक्ति, समस्या मुक्ति, प्रश्न मुक्ति, ऐसे चलेगा? हाँ जी, प्रश्न मुक्ति, समस्या मुक्ति। या इसके लिए जो हम समाधान बोल रहे हैं उसके लिए गुजराती में क्या शब्द है? उकेल, मतलब सॉल्यूशन ही है उकेल। मतलब उसको थोड़ा और समझना पड़ेगा कि समाधान मतलब जैसे हाँ, सॉल्यूशन सबको आ रहा पकड़ में ना? सॉल्यूशन एक्चुअली जो आप कह रहे थे सेटलमेंट, तो उसी को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, जो भी व्यवहार है या जो भी व्यवस्था है उसको पूर्णता के अर्थ में, मतलब उसका पूर्ण समझ, उसको समाधान बोलेंगे। हाँ, समझ बोल सकते हैं। समझ बोल सकते हैं, समझ चलेगा? समझ, मैं समझ गया, मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं समझ गया मतलब मेरे लिए वो समस्या नहीं है। जैसे मैं पानी को समझ गया, अब मेरे लिए पानी समस्या नहीं है। मैं पंखा बनाना समझ गया, तो मेरे लिए पंखा खराब होगा तो मेरे पास इसकी समझ है। जैसे मुझे पंखे की पूरी समझ हो गई, तो अगर पंखा खराब होगा तो मुझे विश्वास है मैं उसको ठीक कर लूंगा। अर्थात तो मैं जो कह रहा हूं, यहां जो समाधान लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि पंखे को लेकर के मेरे पास समाधान है, मेरे पास सॉल्यूशन है। हाँ, हेलो समझ क्या? हेलो। माइक में जी। हेलो हेलो हेलो। समझ जो है वो फर्स्ट टू एंड। इको हो रहा भैया ये माइक से। हेलो हेलो। वो रख दीजिए, उससे कोई बटन दबो, इको हेलो, हो रहा। वो ये कहना चाह रहा है कि शुरुआत से अंत तक समझ, मतलब अच्छा, हाँ फर्स्ट टू एंड। हेलो 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 ठीक है। हेलो। कहाँ पे? हाँ जी। समाधान को गुजराती में निराकरण कहा जाता है। निराकरण। अच्छा, निराकरण चलेगा? वो भी उतना करीब नहीं होगा। देखिए, यहां जब समाधान कहा जा रहा है तो उस वस्तु को समझ लीजिए सीधा सीधा। यहां जब समाधान कहा जा रहा है तो जैसे मैं पशु पक्षी के साथ जी रहा हूं, मैं पेड़ पौधे के साथ जी रहा हूं, तो मेरे पास पेड़ पौधों के संबंधित सारे नियम का मुझे पता है। मैं खेती कर रहा हूं
तो मुझे खेती के सारे नियम पता हैं, यानी मैं खेती को लेकर के समाधान में हूं। अब चला गया। हाँ जी। हेलो। हाँ। हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि क्या हमारे पास सभी चीज़ का समाधान होता है? मतलब कि सभी चीज़ का समाधान नहीं हुआ तो मतलब सभी चीज़ का सुख तो नहीं मिल सकता ना? हाँ, तो आप बताइए सभी चीज का आपके पास समाधान होने की संभावना है कि नहीं है? नहीं। जैसे कोई एक चीज बताइए जिसके समाधान की संभावना नहीं है। कोई एक वस्तु, कोई एक समस्या ऐसा बताइए जिसका आपको समाधान की संभावना नहीं है। जैसे कि पेट्रोल नॉन रिफिलेबल है, उसकी समस्या का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। नहीं, पेट्रोल समस्या थोड़ी है, पेट्रोल तो बस वस्तु है। पेट्रोल के होने का नियम है। पेट्रोल के होने का क्या नियम है कि पेट्रोल जो है वो धरती के अंदर, हाँ जी नमस्ते, सभी सुन रहे हैं? तो पेट्रोल क्या चीज है कि पेट्रोल, जो बड़े बड़े जीव हुए थे वो धरती के अंदर दब गए, उनके दबने से एक रसायन बना, उसको पेट्रोल बोलते हैं। वो धरती के अंदर है। तो कौन कहा था उसको निकाल डालो? वो निकालने के लिए थोड़ी अंदर था। हम निकाल दिए। अब उसमें समाधान आपको क्या चाहिए कि ये खत्म हो जाएगा तो फिर से कैसे पाएंगे, यही ना? तो पेट्रोल क्यों निकाल रहे हैं? गाड़ियां चलाने के लिए। तो उसका समाधान तो आ ही गया। मेरे एक मित्र हैं जो पिस्टन बनाने की बड़ी कंपनी है गाजियाबाद में, श्रीराम पिस्टन, तो वो डीजीएम है वहां पे। हाँ, आपको ही बोल रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने संकेत दे दिया है कि आने वाले 7 साल में पिस्टन का काम बंद होने वाला है। मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन आने बंद हो जाएंगे। क्या आएंगे उसके बदले में? मोटर इंजन आएंगे, मतलब बिजली से चलेंगे। तो समाधान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पेट्रोल का समाधान है कि नहीं है? पर वो तो चीज़ जो खत्म हो गई उसका क्या समाधान हो सकता? वो मानव की बेवकूफी से खत्म हुई है। मानव के पास, मानव ने जो चीज खत्म हो रही है, एक्चुअली वो खत्म होना ही नहीं था। देखिए, मानव के जीने का सामान, अब ये समझ नहीं है ना, मानव के जीने का सामान, मानव धरती के सतह पे रहने वाला प्राणी है कि नहीं? तो मानव के जीने का सामान, जिंदा रहने का सामान मैक्सिमम धरती के सतह पे उपलब्ध है, या थोड़ा बहुत खोद के 10-20 फीट करके निकाल लो, उतना ही है। उससे ज्यादा मानव के लिए नहीं है। जो पेट्रोल अंदर है वो धरती के ताप को बनाए रखने के लिए, क्योंकि सूरज से आने वाले ताप को पचाता है, ताप को बनाए रखने के लिए है। हमने क्या किया, अपने सुविधा के अर्थ में, चूंकि मैंने जान लिया सुविधा बराबर सुख, तो मैंने धरती के संसाधनों को सोचा कि मानव के लिए है, और हमने सब खोद खाद के निकाल के खत्म कर दिया। तो खत्म हो रहा है, ये कोई समस्या नहीं है। मतलब खत्म हो जाएगा तो हम नया पेट्रोल बनाएंगे, इसके समाधान की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बदले में हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो वो तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना? पर वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। कंप्रोमाइज वो नहीं हुआ ना। वो क्या कंप्रोमाइज हुआ? हाँ, तो वो नहीं मिल रहा है इसलिए हम यूज करते हैं। मिल रहा है तो यूज करके। तो वो जो आप वाला समाधान है ना, वो ये जो बोल रहे थे वो वाला आप बता रहे हो। समाधान का मतलब हुआ मेरे प्रश्न का उत्तर। अब क्या है मेरे प्रश्न का उत्तर? कि मुझे गाड़ी चलानी है। मेरा प्रश्न क्या है? मुझे गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलानी है तो जब तक पेट्रोल था हम पेट्रोल से चलाए, नहीं पेट्रोल है मोटर से चलाएंगे। हमको तो गाड़ी चलानी है ना, कि पेट्रोल से ही चलानी है? प्रश्न तो होगा हमको गाड़ी चलानी है, उसका उत्तर होगा जो रिसोर्स होंगे उससे चलाएंगे। वही हुआ ना? पर क्या? अभी तो
आया तो लास्ट में कॉम्प्रोमाइज ही ना, कि भाई नहीं था इसीलिए हम चला रहे, होता तो बहुत चलाते ना। क्या तो गाड़ी क्यों चला रहे हैं? देखिए देखिए, आप जो कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि पेट्रोल ही हमको चाहिए, पेट्रोल ही हमको चाहिए, पेट्रोल ही हमको चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पेट्रोल ही हमको चाहिए, हाँ, पर ये तो कॉम्प्रोमाइज ही हुआ ना, क्या? कि भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा तो चलो कोई बात नहीं, चलो बिजली आने दो आने दो। हाँ, तो ये तो भेजे में अकल है ना कि पेट्रोल हमेशा नहीं मिलेगा। ये तो समाधान है ना मानव के पास कि पेट्रोल हमेशा नहीं मिलेगा, ये तो पता ही है। सर एक मिनट, हाँ जी, कहां पर? जी, समाधान का दूसरा अर्थ संतुष्टि नहीं मान सकते? संतुष्टि, हमारा मन का संतुष्टि। समाधान हो गया, संतोष हो गया, और वही सुख है। हाँ ठीक है, लेकिन संतोष हो गया और संतोष करना पड़ा, ये दोनों में अंतर है। समाधान माने संतोष, हाँ ठीक है, और उससे संतुष्टि मिलती है, तो वो संतुष्टि ही सुख है। ठीक है। मन और शरीर की एक विशेष अवस्था जिसको ठीक। सुख बोलते हैं। ठीक है। तो समाधान का जब यहाँ कहा जा रहा है तो उसका मतलब है कि मेरे पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है, मेरे पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि मुझे गाड़ी चलानी है, इसका उत्तर चाहिए, तो हमको पता है कि पेट्रोल हमेशा नहीं मिलेगा, तो हम मोटर से चलाएंगे। तो समाधान तो गाड़ी चलाने का ही है। सोलर से चलाएंगे, समाधान तो है ही है। वो तो फिर सेम हेलो। ही हुआ ना कि भाई चलो भाई आज खाना अच्छा नहीं है तो खराब थोड़ा बुरा है चलेगा ना, वो चलाने वाली ही बात होगा जाती है ना बाद में। तो नहीं तो मोटर बुरा है, पेट्रोल अच्छा है, ऐसा तो नहीं है ना। हेलो बिजली से, हाँ जी एक मिनट, हेलो सर थोड़ा भाई। थोड़ा इनसे हो जाए। हाँ यही बात कर रहे हैं। हाँ आप कह रहे हैं कि पेट्रोल के बदले में हम बिजली यूज करते हैं, तो हाँ। बिजली खत्म तो होने वाली है ना, उसके बदले में कुछ दूसरा लाएंगे, वो भी खलास होगा। बिजली खत्म होने वाली नहीं है। मतलब यूज तो हाँ जी, बिजली खत्म होने वाली चीज है नहीं, नहीं है। बिजली को बनाने का जो तरीका है, उस तरीके में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो खत्म होने वाली चीज है, बिजली नहीं खत्म होने वाली चीज है। पर वो बिजली खत्म नहीं होगी भैया, निश्चिंत रहिए। तो हम अभी बिजली बनाने के तरीके बदल रहे हैं, केवल बिजली नहीं खत्म होने वाली चीज है। कोयले को हमने उसको समझ लिया, एक समय तक हमारे पास कोयला ज्यादा था तो हम कोयले को जलाए, अब कोयला खत्म होने के कगार पे पहुंचा तो हम गैस से बना रहे हैं, गैस भी खत्म होने के कगार पे है तो हम किससे बना रहे हैं? सोलर पे आ रहे हैं। तो अगर मानव ज्ञान परंपरा में पहले से रहता, हाँ जी, अगर मानव के पास ज्ञान परंपरा पहले से रहती, मानव पहले से 4 अवस्थाओं को समझा होता, मानव धरती को ठीक से समझा होता, तो उसी समय में ऐसी चीजों से बिजली बनाता जिससे बहुत चीजें बच जाती। भाई सूरज उस समय भी था, ऐसा थोड़ी आज ही सूरज आया है, ताजा ताजा बिल्कुल गरम गरम सूरज आया है। हाँ एकदम ताजा और गरम, इससे बिजली बनाओ। सूरज तो पहले भी था, तो क्या चीज नहीं था? क्योंकि हमारे पास दूसरा साधन उपलब्ध था और वो हम खोद के निकालना आसान था, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी, जब कोई भी बात में समाधान होता है तो दोनों को भी अच्छा लगता है बस और दोनों की स्वीकृति होती है, वो लंबे समय तक चलता बहुत है। बढ़िया। एक बार हुआ तो बनी ही रहती है। हाँ, बनी रहती है। जी, हेलो। हाँ। एक बार हुआ तो बना ही रहता है। जी, समाधान को थोड़ा मैं स्पष्ट करता हूँ तो उसमें अभी समाधान को हम कॉन्स्टेंटली जो सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं तो हम लोग अभी भी उसको सुविधा से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान समस्या का होता है और समस्या को अभी समझना पड़ेगा कि सुविधा ना होना समस्या नहीं है, हम निरंतर सुखी नहीं रह पा रहे, यही हमारी समस्या है आज मानव की। पहले तो जो सुख के संदर्भ में हम लोग अभी जो सुखी नहीं रह पा रहे, निरंतर सुखी नहीं रह पा रहे, वही हमारी समस्या है आज। और उस समस्या के संदर्भ में अगर समाधान देखेंगे तो ज्यादा पकड़ आएगा। हाँ
कि समाधान जैसे बोल सकते हैं कि समाधान बराबर हम लोगों ने सुख लिखा, तो सुख अभी हम निरंतर सुख की बात कर रहे हैं, तो निरंतर समाधान की हर प्रश्न, मेरे अंदर कोई प्रश्नहीन हो जाओ, मैं प्रश्नहीन आ रहे मेरे सुखी होने के संदर्भ में, सुविधा मिले ना मिले, कल जाकर के ये हो सकता है, तो उसको ऐसे देखना थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ, बढ़िया है हेलो, जी। समाधान का मतलब यही है कि कोई क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, वो आंसर ही है। जी समाधान वही है, जी। उसका सॉल्यूशन है। तुम हाँ, पूरी तरह से क्या सॉल्यूशन है उसका ऑप्शन। बहुत अच्छा। लेकिन इनका जो ध्यान दिलाना था कि जो क्वेश्चन है मेरा वो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है या कहीं का भी कुछ भी क्वेश्चन हमने बना लिया है। किस क्वेश्चन का समाधान चाहिए? जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, मेरे जीने से जुड़ा हुआ है। मैं और मेरा संबंधी साथ में जी नहीं पा रहे हैं। मैं, हाँ ये समस्या है, मैं प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जी नहीं पा रहा हूं, मैं मानव के साथ संतुलन पूर्वक जी नहीं पा रहा हूं, यह समस्या है। अब इसमें से हम कितनी सुविधा निकालते हैं, कितना यूज करते हैं, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है कि मैं प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जी नहीं पाया अभी तक। उसका प्रमाण आया, मतलब जी नहीं पाया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका प्रमाण नहीं आया सही जीने का। अगर प्रमाण आता तो ये जो अव्यवस्था है इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ? धरती को बुखार हो गया, धरती का ताप बढ़ गया। नवंबर के महीने में, हमको नहीं पता नवंबर के महीने में इतनी गर्मी यहां पड़ती है नहीं, तो धरती को बुखार हो गया, धरती का ताप बढ़ गया, धरती बीमार हो गई। क्यों बीमार हो गई? क्योंकि धरती के जो संसाधन हैं इनके साथ हमको संतुलन पूर्वक जीना नहीं आया। मतलब इनके साथ कैसे संतुलन पूर्वक जिया जाए, ऐसे प्रश्नों का हमारे पास उत्तर नहीं है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर होना समाधान है। मैं मानव के साथ संतुलन पूर्वक नहीं जी पाया, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है जगह जगह खुले हुए जेल खाने, जगह जगह खुले हुए कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी किस बात का प्रमाण है? कि मानव के साथ नहीं जी पाया। पुलिस थाने जेल किस बात का प्रमाण है? कि आदमी को आदमी से खतरा है। तो मानव के साथ संतुलन पूर्वक नहीं जी पाया, इसका मतलब है कि मानव के साथ संतुलन पूर्वक कैसे जिए, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आ पाया। इसका उत्तर आना समाधान है। क्योंकि दो ही जीने के हमारी जगह है, प्रकृति और मानव, और इन दोनों जगह पे ही हम आज तक फेल हुए हैं। पूरी दुनिया फेल हुई है, केवल विश्वनगर के लोग ही फेल नहीं हुए, केवल दिल्ली के लोग ही फेल नहीं हुए, पूरी दुनिया इसमें फेल हुई है, प्रकृति के साथ जीने में, मानव के साथ जीने में। क्योंकि हर जगह कोर्ट कचहरी है, हर जगह मुकदमे, हर जगह पुलिस है, हर जगह नियम कानून बना के रखा है। अगर नियम कानून भी हटा दीजिए तो इनकी और दुर्दशा हो जाएगी। पेड़ जब ज्यादा कटने लगे तो एनजीटी बनाया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भैया तुम ही रोको। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी अपने लिए समस्या हो गई है। हाँ, जो लोग सरकार में हैं वो बोलते हैं भैया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे लिए समस्या है। वहां बैठे हुए लोग सरकारों से घूस मांग रहे हैं। लोग आदमियों से घूस मांगते थे तो बहुत सारे राज्यों में मंत्री वगैरह हम लोग के परिचित हैं, वो बोलते हैं मंत्रियों से घूस मांगा जाता है। क्योंकि देखिए रेल तो बनेगी, मेट्रो बनेगा, रोड बनेगा, पुल बनेगा, तो उसके रास्ते में आने वाले पेड़ वगैरह काटेंगे। तो पेड़ काटना कोई इतना खराब भी नहीं है, लेकिन लगाया जाए। भाई देखिए अगर काटेंगे नहीं तो क्या होगा? वो तो अपने आप उगेगा ही। लेकिन अगर हम काट रहे हैं किसी काम के लिए तो हम लगाएं भी, जितना काट रहे हैं उससे ज्यादा लगाएं। और आपके लिए अच्छी सूचना है कि जो अभी जो दुनिया की रिपोर्ट आई है उसमें दुनिया में जो फॉरेस्ट एरिया है बढ़ा है।
जो हरे भरे ग्रीन क्षेत्र हैं वो बढ़े हैं भारत दुनिया में, पूरी दुनिया को मिला के देखें तो पेड़ों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसा नहीं, आदमी सचेत हो रहा है। तो बहुत सारे नियम कानून इसलिए बनाए हैं, उन नियम कानून के कारण ये बचे हुए हैं। लेकिन समाधान ऐसा थोड़ी है नियम कानून, तो ऐसा आया भी कि नियम कानून सब कहां मानते हैं। तो नियम कानून से होगा या मानव स्वनियंत्रित होगा। तो जब यहां लिखे थे मानव को शासन स्वीकार नहीं है, तो फिर मानव को क्या स्वीकार है? मानव को स्वनियंत्रण स्वीकार है। स्वनियंत्रण ही स्वीकार है। जैसे कौन सा मानव होगा जिसको कोई नासमझ कहे और उसको अच्छा लगेगा? कोई मानव आपको मिला जिसको आप नासमझ कहें और उसको अच्छा लगे? नहीं अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या है? हर मानव खुद को समझदार कहलाना ही चाहता है नहीं, वो अलग बात है। हमारे घर में बच्चे बड़े होते हैं, एक समय के बाद हमारी बात को मानते हैं, एक उम्र के बाद बोलते हैं नहीं हमको इसका पता, आपको नहीं पता। क्यों? वो सोचते अच्छा, आप कोई काम उनको बता देते हैं और वो काम करके आते हैं, अब आप बोलते हो नहीं ये तुम गलत कर दिए, बोलते नहीं हम सही किए हैं। मतलब इस बात का प्रमाण है कि वो ये चाहते हैं कि उनको समझदार माना जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मानव स्वनियंत्रण चाहता है, शासन नहीं चाहता। इसीलिए बोले कि शासन व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि शासन मानव पे होता है और मानव को स्वीकार ही नहीं है। देश में, इस देश में कम से कम अधिकतर लोग नियम को नहीं मानते। किसी लज्जावश, किसी और चीजों के बस लोग स्वीकार मतलब समझौता करके जी रहे हैं, नियम को नहीं मानते। मैंने देखा है दिल्ली में कितनी भी पेनाल्टी बढ़ा दीजिए, लोग पेनाल्टी देने में गर्व महसूस करते हैं। धड़ाधड़ ग्रीन रेड लाइट शूट करेंगे, 2000 की नोट निकाल के दे देंगे, बढ़ जाएंगे आगे। भैया पैसे से आप थोड़ी नियम मनवा पाओगे, पैसा तो लोगों के पास हो गया है, पेनाल्टी लगाओ। अभी दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है, सबको पता है ऑड इवन है, फिर भी लोग डेली 100, 200, 400 पेनाल्टी कट रही है। क्या लोगों को पता नहीं है ऑड इवन है? चलो कोई बात नहीं, 4000 पेनाल्टी देंगे, गाड़ी तो जाने देंगे। गाड़ी से जाना ही चाहते, गाड़ी तो जाने देंगे। तो कुल मिलाकर के नियम कानून का मतलब क्या हुआ? शासन। शासन मानव को स्वीकार नहीं होता। शासन जब भी स्वीकार होगा मानव को, स्वनियंत्रण स्वीकार होगा। हर बच्चा चाहता है कि उसको समझदार, जिम्मेदार माना जाए। क्यों प्रिया? जबकि बड़े हैं कि मानते ही नहीं है कि आप समझदार हो गए। बड़े मानते ही नहीं है कि समझदार हो गए, लेकिन ये क्या चाहते हैं? हमको समझदार, जिम्मेदार माना जाए। बड़ों की क्या इच्छा है? समझदार, जिम्मेदार हो जाएं। तो समझदार, जिम्मेदार माना जाए का मतलब ये हुआ हम स्वनियंत्रण चाहते हैं। तो जब व्यवस्था को समझते हैं तो स्वनियंत्रण आता है। तो व्यवस्था को समझते हैं, तो इसीलिए पहले दिन कल बोला था कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है और समझा हुआ जीने के काम आता है। तो जब भी समझना बोल रहे हैं, इसका मतलब जीना। समझने का मतलब हुआ कि मेरे जीने की चीज है, जीने की चीज को समझा जाता है, सुनाने की चीज को सुना जाता है, सूचना सुनी जाती है। जैसे मुझे वहां से उन्होंने इशारा किया, चाय का टाइम हो गया, मैंने आपको बता दिया चाय का टाइम हो गया। इसमें कुछ समझने की चीज थी? इसमें कुछ समझने की चीज थी? नहीं थी। तो उधर से सूचना आई, हमने इधर दे दी, तो सुना दिया। तो समझना का मतलब ही है जीना, जीने के अर्थ में ही समझना। इसीलिए जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा,
इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीने के ज्ञान के संबंध में आशा। यानी जीने के संबंध में आशा, जिज्ञासा। तो हम लोग बोलते हैं कि आपकी क्या जिज्ञासा है, मतलब आपके जीने के संदर्भ में क्या आप पूछना चाहते हो। जिंदा रहने के संदर्भ में नहीं, जीने के संदर्भ में आप क्या पूछना चाहते हो, उसको जिज्ञासा बोलते हैं। तो अभी जितना हम समाधान कोशिश, तो इसको समाधान नहीं कहते। सुविधा के अर्थ में नियम को पहचानना है, नियम के अनुसार उसका उपयोग करना है। सुविधा का क्या करना है, सुविधा के लिए क्या करना है, नियम को पहचानना है, उसके अनुसार उसका उपयोग करना है, उसका उतना ही समाधान है। लेकिन मानव का मानव के साथ और मानव का प्रकृति के साथ निरंतर तालमेल पूर्वक जीना बना रहे, इसके अर्थ में जितने भी मेरे उत्तर हैं वो सभी समाधान हैं। मानव का प्रकृति के साथ, मानव के साथ तालमेल बना रहे, इसके संदर्भ में जो उत्तर है वो सारा उत्तर समाधान है। ये नीचे वाला भी डायग्राम बना ही देते हैं। अब मानव कितने स्तरों पे जीता है, तो परिवार में जीता है, समाज में जीता है, और परिवार समाज में जीता रहे इसके लिए कुछ व्यवस्था बनाता है जिसको मानवकृत व्यवस्था बोलते हैं। मानवकृत व्यवस्था, जैसे इस हॉल में मानवकृत व्यवस्था बनाई गई है, एक आर्टिफिशियल वातावरण बनाया गया है कि आपको इधर बैठना है, हमें यहां खड़ा होना है, इस बोर्ड पे लिखना है। ये मानवकृत व्यवस्था है। ऐसे ही सरकार है, पुलिस है, नियम है, कानून है, ये हम बनाते हैं, उसको मानवकृत व्यवस्था बोल रहे हैं। ठीक, अब इसको देखा जाए यहां क्या हो रहा है। तो मानव को लगता है कि मेरे परिवार में मेरी इज्जत नहीं है, मेरे परिवार को समझदार होने की जरूरत है। क्यों हिमांशु भाई? तो मानव को लगता है कि मेरे परिवार में लोगों को समझदार होने की जरूरत है। परिवार को क्या लगता है? मानव को समझने की जरूरत है। स्कूल जाओ, पढ़ो पढ़ो, शिविर में जाओ, तुम्हारे लिए शिविर बहुत जरूरी है। परिवार को क्या लगता है? तुम शिविर करो, तुम्हारे लिए जरूरी है। तो परिवार मानव को ना समझ मान रहा है, मानव परिवार को ना समझ मान रहा है, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क। अभी मैं क्वेश्चन मार्क काले से बना रहा हूं क्योंकि लाल पेन नहीं है यहां। चलिए, लाल वहां तक दिखता भी नहीं है। फिर परिवार और समाज में देखते हैं तो परिवार बोलता है जी क्या करें क्या करें, समाज एकदम बिगड़ा हुआ है, एकदम बिगड़ गया, समाज बर्बाद हो गया है। समाज क्या बोलता है कि समाज नाम की कोई चीज थोड़ी होती है भाई, परिवार से ही तो लोग समाज बनते हैं, इसका मतलब परिवार बिगड़ा हुआ है। ले ले लाल, हाँ वो पता चलेगा ना, लाल निशान। ठीक, जी। तो मानव बोलता है परिवार नहीं ठीक है, परिवार बोलता है मानव नहीं ठीक है, परिवार बोलता है समाज बिगड़ा हुआ है, समाज बोलता है जो समाज में आते हैं परिवार से आते हैं तो परिवार बिगड़ा हुआ है। मानव बोलता है कि समाज ठीक नहीं है। क्या शिक्षा होगी जब समाज ठीक नहीं है? समाज बोलता है मानव से ही समाज बनता है, परिवार बनता है, इसलिए मानव पे काम करने की जरूरत है।
तो मानव और समाज के बीच में भी क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से समाज और मानवकृत व्यवस्था को देखिए। समाज बोलता है व्यवस्था सड़ गई है, सरकारें बेकार हो गई हैं, सरकारें जो है काम लायक नहीं रह गई हैं, सरकार में जो लोग आते हैं वो अच्छे नहीं हैं, जनता चुनाव अच्छा नहीं करती है, ऐसा बोलते हैं समाज। व्यवस्था क्या बोलती है? भाई जो आप आदमी बनाए उसी में से तो चुनेंगे हम, आप लोग ठीक आदमी क्यों नहीं बना रहे हो? मान लीजिए 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो उन 8 में से ही तो किसी को चुनना है। अभी तो 9वां एक नोटा भी लड़ने लगा है, नहीं तो पहले आदमी लड़ता था, अब जो है कल्पना भी लड़ने लगी है। तो सरकार बोलती है कि समाज खराब है, समाज बोलता है सरकार खराब है, परिवार बोलता है सरकार खराब है, सरकार बोलती है परिवार खराब है। ऐसे ही मानव और सरकार के बीच में देख लीजिए, जहां मानव की एंट्री हुई सब लाल बत्ती जल गई। धरती पर मानव की एंट्री होते ही लाल बत्ती जली है। तो ऊपर जो अव्यवस्था हुई है इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यहां जो अव्यवस्था हुई है उसको फैमिली वार्मिंग बोलते हैं, फैमिली वार्मिंग। यहां जो अव्यवस्था हुई है उसको सोशल वार्मिंग बोलते हैं। और जो मानव तनाव में आ गया है इसको पर्सनल वार्मिंग बोलते हैं। वार्मिंग का मतलब, वाब मतलब गरम, गरम मतलब आग लगी हुई है तो मेरे अंदर भी आग लगी हुई है, यानी मैं तनाव में हूं। परिवारों में भी आग लगी हुई है क्योंकि वहां कलेश है, समाज में आग लगी हुई है, भय है, व्यवस्था में आग लगी हुई है क्योंकि व्यवस्था भय से ही चलाई जाती है। अभी सरकारें कैसे चलती हैं? अभी ये बोल रहे थे प्रतिबंध लगा दिया लिकर का, तो सरकार कैसे चलती है? भय और प्रलोभन से। सरकार या तो आपको कानून का कोई डर दिखाती है, नहीं तो कोई लालच देती है। आप हमको वोट दो, हम आपको फ्री में बिजली देंगे। आप हमको वोट दो, हम आपको फ्री में खाना देंगे। आप हमको वोट दो, हम आपके यहाँ फ्री में टॉयलेट बनवाएंगे। आप हमको वोट दो, हम आपका फ्री में घर बनवाएंगे। ये क्या है? ये प्रलोभन है। फिर बोले आपने नियम तोड़ा है इसलिए आपको जेल में डालेंगे। ये क्या है? भय है। तो सारी सरकारें पूरी दुनिया की भय और प्रलोभन से लोगों को हाँकती हैं, जबकि ये दोनों मानव को स्वीकार नहीं है। तो कुल मिलाकर के पर्सनल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग, सोशल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये वार्मिंग लेके हम पड़े हुए हैं। किस वजह से? क्योंकि ये जो महोदय आए, ये जो महोदय आए, इनके विकास के बाद इन महोदय का नाम था कि ये ज्ञानावस्था की इकाई है। ज्ञानावस्था मतलब समझ के जीने वाली इकाई। इनको समझ के जीने का कोई कार्यक्रम नहीं है, नियम है उसके अनुसार रहते हैं, लेकिन इनको समझ के जीने का इकाई है, इसीलिए इनको कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन वो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता तो मिल गई, समझ नहीं मिली, इसलिए सारे आग लगे हुए हैं। तो कार्यक्रम क्या नहीं, तो अब ये व्यवस्था है। तो जहां जहां लाल निशान है वो अव्यवस्था है, जहां लाल निशान नहीं है वो व्यवस्था है। ये अव्यवस्था कैसे ठीक होगी? मतलब होने के रूप में व्यवस्था है ये। भाई मानव जब भी रहेगा तो परिवार में होगा, परिवार जब भी होगा तो एक समाज का हिस्सा होगा, समाज जब भी होगा तो कोई न कोई मानवकृत व्यवस्था बनानी ही पड़ती है, कोई नियम कानून बनाने ही पड़ते हैं।
लेकिन वो नियम कानून हमको सहज क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि हमको सरकार पे विश्वास नहीं है, हमको समाज पे विश्वास नहीं है, हमको परिवार में विश्वास नहीं है, हमको खुद पे ही विश्वास नहीं है। तो ये पूरी होने के रूप में व्यवस्था है, लेकिन रहने के रूप में व्यवस्था दिख नहीं रही है। अभी ये अव्यवस्था दिख रही है, होने के रूप में व्यवस्था ही है। तो जैसे ही मानव समझदार होता है, एक मानव समझदार होता है, एक मानव के समझदार होने से उसके परिवार में खुशहाली आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? वो बाकी लोगों के भी समझदार होने के लिए रास्ता बनाता है। एक मानव के समझदार होने से एक परिवार खुशहाल होता है तो समाज के खुशहाली की संभावना बनती है। तो ये होने के रूप में व्यवस्था है, अभी रहने के रूप में व्यवस्था नहीं बन पाई, हो नहीं पाई। क्योंकि जब भी व्यवस्था होगी तो भी ऐसी ही होगी, केवल ये लाल निशान नहीं होंगे, समाज ही होगा, प्रकृति ही होगी, मानव होगा, परिवार होगा, मानवकृत कोई व्यवस्था होगी, ऐसा ही होगा। इसके मूल में जाएंगे, मानव ये लाल निशान के मूल में जाएंगे तो मानव की नासमझी, और क्या चीज नासमझी? मानव खुद को समझ नहीं पाया कि मुझे सुख चाहिए और निरंतर चाहिए और ये सुविधा से नहीं मिलने वाला। मानव ये समझ नहीं पाया कि मुझे जो निरंतर सुख चाहिए, ये सुख सुविधा से निरंतरता इसमें नहीं आएगी, निरंतरता नहीं होगी। तो मानव जब भी मानव के साथ तालमेल पूर्वक जिएगा, समझ पूर्वक जिएगा, तो ही सुख की निरंतरता होगी। उस सुख को समझने गए तो पता चला स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। तो जो घटना, जो स्थिति में स्वीकार होती है, स्वीकार लेता हूं नहीं, मेरे में स्वीकृत हो जाती है, वैसे भाव में मैं स्थिर हो जाता हूं। तो मेरे में भाव स्थिर होते हैं तो मेरे विचार स्थिर होते हैं, मेरे भाव स्थिर होते हैं तो मेरे विचार स्थिर होते हैं, मेरे विचार स्थिर होते हैं तो मेरे कार्य और व्यवहार स्थिर होते हैं, मेरे कार्य और व्यवहार स्थिर होते हैं तो मैं मानव के साथ संतुलन पूर्वक और प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जी पाता हूं। तो भाव की स्थिरता से विचार की स्थिरता आती है, विचार की स्थिरता से मेरे कार्य व्यवहार की निश्चितता आती है, अर्थात मैं निश्चित आचरण को पा जाता हूं। तो स्वीकृति भाव है, तो मेरे में जब वो भाव स्थिर हो जाते हैं, मैं स्वीकृति के भाव में आ जाता हूं, तब मेरे विचार स्थिर होते हैं। अभी तो मैं खुद अपने विचार से परेशान हूं। सुबह कोई और विचार आया था, दोपहर होते होते सूरज के ऊपर आते आते मेरा ही विचार बदल गया, शाम होते होते फिर मेरा विचार बदल गया, कल मेरा कुछ और विचार हो गया। तो मेरे विचार में स्थिरता नहीं है, इसीलिए मेरे कार्य व्यवहार में निश्चितता नहीं है, इसीलिए मैं प्रकृति के लिए भी उपयोगी आज तक नहीं हो पाया और एक मानव के लिए भी उपयोगी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि एक मानव के लिए मैं तभी उपयोगी होऊंगा जब मेरा आचरण निश्चित होगा, मेरा व्यवहार निश्चित होगा, उसमें कंसिस्टेंसी होगी। तो मेरे भाव की स्थिरता न होने से मेरे विचार की स्थिरता नहीं है, इसीलिए मेरे कार्य व्यवहार में निश्चितता नहीं आ रही, वो मुझे भी स्वीकार नहीं हो रही, दूसरे को भी स्वीकार नहीं हो रही। तो मैं सुख पूर्वक जीने लगता हूं। अबे नया स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट नया दिया हमने? देखिए, बहुत देर बोलने के बाद एक स्टेटमेंट नया आता है। तो मैंने अभी क्या नया स्टेटमेंट दिया? हां, मैं सुख पूर्वक जीने लगता हूं। ये अभी तक का नया स्टेटमेंट है कि नहीं है? क्योंकि अभी क्या कह रहे थे? अभी कैसा जीते हैं? सुखी होने के लिए जीते हैं। तो सुखी होने के लिए जीना है या सुखी होकर जीना बनता है? इसको जांचिए। सुखी होने के लिए जीते हैं, जीना बनेगा या सुखी होके जीना बनेगा? सुखी होके।
जीना बनेगा। अब पता चला रॉन्ग नंबर कहाँ है। रॉन्ग नंबर ये है कि हम सुखी होने के लिए जीते हैं। किससे? ऐसे मानव के साथ जो खुद ही सुखी नहीं है। तो एक सूत्र है, जिसके पास जो होता है उसी का वो बंटन करता है, बंटवारा करता है, बांटता है। तो सुखी सुख बांटेगा, दुखी दुख बांटेगा। तो हम सुख की आस किनसे लगाए हुए हैं? हम सुख की आस किनसे लगाए हुए हैं? जो पहले से दुखी बैठे हुए हैं। तो इसी में दो चीजें और जोड़ता हूं, दो स्टेटमेंट और। सम्मान पाने के लिए जीना होता है या सम्मान पूर्वक जीना होता है? आप देखिए कौन सा सही होगा, सम्मान पाने के लिए जीना या सम्मान पूर्वक जीना? आप सम्मान पूर्वक जीने का मतलब ही ये हुआ, मैंने अपने अंदर सम्मान को पहचान लिया है तो ही मैं दूसरे का सम्मान कर पाऊंगा। अगर मैं सम्मान पहचाना ही नहीं हूं तो दूसरे का क्या सम्मान करूंगा? कोई एक्टिंग ही करूंगा। तो लोग माला पहनाते हैं, अंदर से गालियां निकालते हैं। साल उड़ाते हैं, अंदर से गुस्सा निकालते हैं। कहां से आ गया, खर्चा करा दिया हमारा। तो सम्मान पूर्वक जीना होता है। अगला स्टेटमेंट, विश्वास पूर्वक जीना होता है, विश्वास पाने के लिए जीना नहीं होता। तो तीन स्टेटमेंट दिया, सुख पूर्वक जीना होता है, सम्मान पूर्वक जीना होता है, विश्वास पूर्वक जीना होता है। क्यों? क्योंकि सम्मान भी अपने आप में एक सुख ही है, विश्वास भी अपने आप में एक सुख ही है। सुख का ही एक नाम है विश्वास, सुख का ही एक नाम है सम्मान। क्योंकि सुख हमको कितना चाहिए? सुख हमको कितना चाहिए? अरे ये तो रट गया है ना, निरंतर। विश्वास कितना चाहिए? निरंतर। सम्मान कितना चाहिए? अब अगर दूसरे पे डिपेंड है सम्मान के लिए तो निरंतरता की संभावना है? मैं सम्मान के लिए अगर दूसरों पे निर्भर हूं तो सम्मान के निरंतरता की संभावना है? उसकी मर्जी, पानी दीजिएगा, उसकी मर्जी। इसीलिए हमको सम्मान कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमको बाहर से आने की उम्मीद है। हाँ जी, तो आज सुबह से कितनी बात किए? एक बार आप लोग 2-3 मिनट अपनी आंख बंद करिए या खुले भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए कि सुबह जब आप इस सभा में आए थे तो उस समय आप कुछ बातों को आपके अंदर चल रही थी, फिर दिन भर कुछ बात हुआ, उसमें क्या करेक्शन हुआ, आपके समझ में, आपके सोच में क्या बदलाव हुआ, क्या आपको नई सूचना मिली जो कि आपको पच गई, क्या सूचना मिली जो अभी तक पची नहीं है लेकिन आपको लगता है नहीं ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा होगा, बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो एक बार आप सुबह से लेकर अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है उसको एक बार आंख बंद करके या खुले, जैसे आपको अच्छा लगता हो, एक बार सोच के देखिए। जिनको लगता नहीं जितना मैं सोचा था सब कॉपी में लिख दिया हूं, तो कॉपी पलट लीजिए। क्योंकि कॉपी में क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं कॉपी में लिखिए, लेकिन जो समझ लीजिए उसको ज्यादा लिखिए। क्योंकि कॉपी 7 दिन बाद फिर पता नहीं चलता कहां गई। ये जो डायरियां हैं, ऐसी डायरियां बहुत घर में पड़ी हुई हैं,
उसको पलट के देखने वाले कम ही लोग हैं। कुछ लोग देखते होंगे, ऐसा नहीं है, अधिकतर लोग फिर ये डायरिया नहीं देखते। इसलिए इस 7 दिन में जो आपको मिल गया, आपने अपने में जो करेक्शन कर लिया, जो बातें आपको पच गई, वो आपके साथ बनी रहती हैं। ठीक है, चलिए अब से 2-3 मिनट आप एक बार सोचिए। हाँ जी, हो गया किसी का? कोई बोलेंगे या और टाइम लेंगे थोड़ा? जिसको बोलना होगा हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी, आपको? हेलो हेलो એટલે एक्चुअली मैं गुजराती में बोलूँगा तो मतलब काफ़ी लोगों को बढ़िया। क्लियर भी हो जाए। સૌથી પહેલાં આપણે જિંદા રહેના અને જીના એ બે બંનેનો તફાવત સમજવાનો ટ્રાય કર્યો। જિંદા રહેના એટલે કે પ્રાણીઓ જે મોટાભાગે ખાલી જીવતા રહેતા હોય છે, આપણે એવું કહીએ તો એ લોકો કઈ કઈ એક્ટિવિટી કરતા હોય તો એ બધું આપણે એ બતાવ્યું અંદર કે રોજ સવારે ઉઠે એટલે એમની જે રૂટીન એક્ટિવિટી હોય કે ખાવાનું લેતા હોય, થાક લાગે એટલે સૂઈ જાય, પછી એમને ટૂંકમાં ડર લાગતો હોય અને એ પ્રજનન કરતા હોય સંતતિ માટે। તો આ બધી એમની રૂટીન એક્ટિવિટી હોય કે કોઈ પણ એનિમલ અથવા તો પ્રાણીઓ જુઓ તો આ બધા કામ કરે જ હોય। એમાં એમને બીજું કંઈ નવું ના આવે। કોઈ પણ પ્રાણી લઈ લો તો આપણે એ જોયું કે એનો મતલબ કે એ લોકો જિંદા રહે છે। તો એમનામાં અને આપણામાં શું ફરક છે? તો આપણામાં એક વધારે એવું પાર્ટ હતો કે બુદ્ધિવાળો પાર્ટ હતો, અથવા તો જે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવો છે એના માટેનો એક પાર્ટ હતો જેને આપણે જીના કહીએ છીએ। એટલે પછી આપણે જોયું કે હવે બે પાર્ટ છે તો જીનાવાળો જે પાર્ટ છે એની અંદર જિંદા રહેના એ તો આવી જ ગયો છે, જે પ્રાણીઓ કરે છે એ તો હવે કરવાનું જ છે। તો એ પાર્ટ દરેક જણાને ગમ્યો કે ભાઈ ચાલો દરેક જણ છે ને જીના રહેના એટલે કે જીવવા માગે છે એ એંગલથી કે જીના રહેના, બરાબર। તો હવે એની અંદર પછી આપણે એવો નવો એક ક્વેશ્ચન ઊભો કર્યો કે બધા ભાઈ જીના રહેના એટલે કે એ પાઠમાં માગે છે રહેવા, તો જીના ક્યો હૈ? એટલે આપણા માટે ક્વેશ્ચન આવ્યો કે ભાઈ કેમ જીવવું છે, જીવવાનો શું પર્પઝ છે? એટલે આપણે ઘણા બધા એમાં કારણો ડિફાઇન કર્યા કે ભાઈ બધાએ કેમ કેમ જીવવું છે। એટલે દરેક કોઈએ સુખ માટે, કોઈ સમૃદ્ધ થવા માટે ને આવા અલગ અલગ બધાએ એની અંદર રીઝનો આપ્યા ભાઈ કેમ જીવવું છે। તો એ બધા રીઝનો આપણે ડિટેલમાં જોયા તો એમાંથી એવું એક સારાંશ મળ્યો કે ભાઈ એ બધામાં કોમન તત્વ સુખ છે। એટલે કે દરેક લોકો સુખી થવા માટે આ બધો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે।
દરેક લોકો સુખી થવા માટેના આ બધા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો હવે સુખની ડેફિનેશન શું? તો સુખ શેમાંથી મળે? તો આપણી પહેલી એક સમજ હતી કે સુવિધામાંથી સુખ મળે. એટલે કે આપણે સુવિધાઓમાંથી સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એમાં આ બધા હતા કે રૂપ, પદ, ધન એ બધામાંથી. પણ એ બધામાં શું હતું કે એક ક્ષણિક હતા કે આહારમાંથી મળે સુખ મળે, પણ એ ક્ષણિક હોય. કારણ કે આપણને ખાવું, કારણ કે શરીરની જરૂરિયાત છે એટલે ખોરાક જરૂર છે, એટલે એ ખોરાક શરીર માગે છે. એટલે જ્યારે આપણે ખોરાક ખાઈશું એ વખતે આપણને સુખ મળશે, પણ એની જ્યારે શરીરની જરૂરિયાત પતી ગઈ એ વખતે એ ફિનિશ થઈ ગયું ત્યાં સુખ. પણ આપણા જોડે બીજી કોઈ સમજ નથી, એટલે આપણે શું કરતા એમાં અલગ અલગ આહારમાં પણ વિવિધ વેરાયટી લાવીએ કે ચલો નવી નવી વાનગીઓ બનાવીએ, એમાંથી સુખ મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા. બીજું એવું પણ કરવા માંડ્યા કે ભાઈ નવી નવી વેરાયટી પણ ઘણી બધી થઈ ગઈ, તો હવે ચલો ને એમાંથી સુખ મળે છે તો કેમ વધારે ના કરીએ? તો એ વસ્તુ જેમાંથી સુખ મળતું હોય ને, ચલો એની ક્વોન્ટિટી વધારીએ. સપોઝ રસગુલ્લા વધારે ભાવે છે તો શરીરની જરૂરિયાત 4 રસગુલ્લા ખાવાની છે, તો કેમ કરીને હું 7 ખાઉં તો એટલો થોડો ટાઈમ મને વધારે સુખ મળે. એટલે એવો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા. એટલે કે સુવિધામાંથી આપણને સુખ અથવા તો કમ્ફર્ટ ઝોન, કે જેમ કે એસી છે એ બધામાંથી સુખ મળતું હોય, તો આખો દિવસ કેવી રીતે આપણે વાતાનુકૂલિત એટલે કે એસીમાં ટ્રાય કરીએ એમ જીવવાનું. એટલે કે આપણે સુવિધાઓમાંથી સુખ મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા થયા. પણ એમાં એવું થાય કે સુવિધા જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સુખ છે. એ સુવિધા કોન્સ્ટન્ટ તમારી જોડે નહીં હોય. જેમ કે આહાર તમે આખો દિવસ ખા નહીં કરો, આખો દિવસ ઊંઘ નહીં કરો. તમારા શરીરને જરૂર હશે એટલે તમને ઊંઘ આવશે, પણ ઊંઘ પૂરી થઈ એટલે પછી શું? તો એ બધામાંથી ટૂંકમાં બહાર નીકળવા માટે પછી આપણે બીજી સુખની નવી ડેફિનેશન જોઈ કે ભાઈ સ્વીકૃતિ એટલે સુખ. તો સ્વીકૃતિ એટલે કે જે તમને સ્વીકાર ભાવ છે, જ્યારે તમને કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વીકાર આવે અથવા તો તમે જેવું ઈચ્છો એ વખતે તમને સુખ મળે છે. એટલે એક ડેફિનેશન આપણી જોડે એ આવી કે જ્યારે પણ તમારો સ્વીકાર ભાવ હોય અથવા તો તમને જે ગમતું હોય એ ટાઈપનું મળ્યું. અત્યારે એ ટેમ્પરરી છે મૂળ, એ આગળ એની આખી ડેફિનેશન વધારે ક્લિયર થશે. પણ જ્યારે પણ એ વસ્તુનો જ્યારે તમને સ્વીકાર ભાવ આવે ને એટલે એમાંથી સુખ મળે. જો કોઈ વસ્તુ સ્વીકાર ભાવ નથી અથવા તો જે નથી ગમતી, તમે એવું મગજમાં ડિફાઇન કર્યું છે કે આ સારું નથી એટલે કે એનો સ્વીકાર ભાવ સારો નથી, તો એ વખતે એ વસ્તુ તમને દુઃખ નહીં આપે. એટલે કે અસ્વીકાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ દુઃખ. એટલે તમારું એમાં અસ્વીકાર થયો છે એટલે હવે તમે એમાં દુઃખની લાગણી અનુભવશો. ઓકે, એટલે હવે બીજા કોઈને સપોઝ एक जो जो मेरे को समझ में थोड़ा हाँ। विवरण कर लेता हूँ. जी इसमें स्वीकृति बराबर सुख तो बहुत क्लियर अभी मेरे को भी हो रहा है कि हमको स्वीकृति, गुजराती में ज बात करूँ, स्वीकृति जे છે વ્યવસ્થાની છે. એક આપણે કે વ્યવસ્થા અને અવ્યવસ્થા. તો વ્યવસ્થા એ છે કે અહીંયા જે પદાર્થ અવસ્થા છે, પ્રાણ અવસ્થા, જીવ અવસ્થા, તો ધરતીની બધી વ્યવસ્થા છે એક વ્યવસ્થા છે. એ વ્યવસ્થામાં માણસે કંઈક ના કંઈક પોતે જે કર્યું છે કે પહેલે આમાં જે વાત કરી માનવ કા સમસ્ત પ્રયાસ કેવલ ઓર કેવલ સુખ કે લીએ હે. એટલે કે માણસની અંદર સમજણ નહોતી એટલે એ પોતે સુખના પ્રયાસની અંદર પ્રકૃતિ સાથે બધી અવસ્થાઓ સાથે ક્યાંક ના ક્યાંક છેડખાની કરી છે. એટલે આપણે જે ટેમ્પરરી સુખ કહીએ છીએ તો ટેમ્પરરી સુખ ત્યાંથી મળી ગયું કંઈક ના કંઈક લેવા માટે. પણ આજે ગ્લોબલ વોર્મિંગ આપણે ઊભું કર્યું છે અને નીચે જોઈએ છે કે સમજણ નથી. એટલે વિધાઉટ સમજણ વગર માણસે સમાજ બનાવ્યો, પરિવાર બનાવ્યો, માનવકૃત વ્યવસ્થા બનાવી, પણ એની અંદર પણ સંતુષ્ટિ નથી. આજે ક્યાંક ના ક્યાંક વિરોધ જન્મી રહ્યો છે. તો એ ક્લિયર થયું. એટલે કહેવામાં કે જે વ્યવસ્થા એટલે આ વસ્તુ આખી સિસ્ટમ જ્યાં સુધી સમજીએ નહીં ત્યાં સુધી વ્યવસ્થા સમજણમાં નહીં આવે. એટલે ઘણી વખત બધા પ્રશ્નો જે ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે તો એ દેખાય છે તો આપણા ટેમ્પરરી સુખમાંથી જ એને હજી બીજી દિશામાં જોવા તરફ લઈ જઈ રહ્યા છીએ આપણે. જે ચોરી કે દારૂની કે ટેમ્પરરી એન્જોયમેન્ટ, આ બધું એ શરીરના આધાર ઉપર ત્યાં જ છે. પાછું આપણા શરીર ઉપર આવી જઈએ છીએ. હજી અહીંયા શિફ્ટ થાય એવું લાગતું નથી જીના ઉપર. એટલે હજી જીના ઉપર જર્ની સ્ટાર્ટ નથી થઈ, એ હજી ક્લિયર થાય છે. એટલે હજી મને ક્લિયર થાય છે કે હજી જીના હજી હવે આપણે એમાં ખાલી એક થડી એક શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. તો इधर तक क्लियर हो रहा है.
कि हेलो जिंदा रहना, जीना, और व्यवस्था क्या है और अव्यवस्था क्या है। अव्यवस्था तो दिख ही रही है एवरीवेयर, ग्लोबल जी। वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग और जो भी है। थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी, चाणक्य। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने जो डिफ्रेंशिएट किया जीना और जिंदा रहना, उसमें जो जीना चाहता है उसे एक मकसद के साथ जीना पड़ता है, और वो मकसद अभी एक ही होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बड़े बिजनेसमैन बने और पैसे कमाए। पर जो हमारे पूर्वज, जो उनके समय में कोई पढ़ने का उतना मीनिंग, महत्व नहीं था, तो क्या वो नहीं जीते थे कोई मकसद के साथ? और क्या वो सिर्फ जिंदा ही रहते थे, वो जीने का कोई मतलब नहीं था? बढ़िया। तो अभी क्या है अभी क्या है, जिंदा रहना और जीना को हम और बढ़िया से सेटल कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब बहुत सारी यात्रा उसके बाद कर ली है। अब यहाँ पे अगर हम इसको बैक लौट के देखेंगे तो जीने का मतलब है सुखपूर्वक जीना। सुखपूर्वक ही जीना होता है, अन्यथा झेलना और झेलाना ही होता है। फिर वो जिंदा रहना ही है। अगर जिंदगी में सुख नहीं है तो जिंदा रहना ही है। तो जीने का मतलब सुविधा भी हो और सुख भी हो। सुविधा भी होगी, सुविधा का होना जरूरी है। अब आपके पास ज्ञान हो गया और खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो ज्ञान से थोड़ी कपड़ा रोटी आ जाएगा। उसके लिए श्रम करना पड़ता है। उसके लिए आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैंने कोई नौकरी करें, या कोई आप अपना बिजनेस करें, या कोई अपना आप उत्पादन करें, कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई खेती करें। इसी से तो आएगा। खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? समझदार आदमी को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे समझदार हो गया तब भी खाना ही खाएगा। तो समझदार हो गए तो भी खाना चाहिए, तो सुखी हो गए तो भी खाना चाहिए। तो जीना मतलब सुखपूर्वक जीना, और सुखपूर्वक जीना मतलब निरंतर सुखपूर्वक जीना, मतलब समझदार होके ही जीना होता है, नहीं तो जिंदा रहना होता है। तो जिंदा रहने का सामान भी चाहिए भाई, शरीर तो जिंदा रहेगी, तो जिंदा रहने का सामान चाहिए। उसके लिए आपकी चॉइस है, आपको जो बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, नौकरी करना है, नहीं करना है, बिजनेस करना है, खेती करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई उद्योग लगाना है, आप अपना डिसाइड करिए। क्योंकि भूख लगेगी तो खाना चाहिए। नहीं जी आपको बहुत प्यार करते हैं, अरे हमको भूख लगी है, सम्मान भी करते हैं, हमको भूख लगी है, आप पे विश्वास भी करते हैं, अरे हमको भूख लगी है, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, अरे हमको भूख लगी। तो भैया जब भूख लगेगी तो उस समय खाना चाहिए ही चाहिए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो बुजुर्ग लोग जो हैं, पहले के लोग, मतलब बुजुर्ग मतलब एक पीछे की जो परंपरा है, तो क्या पीछे डॉक्टर इंजीनियर नहीं होते थे? पीछे भी होते थे। आज भी क्या डॉक्टर इंजीनियर सबके परिवार में है? नहीं है। पहले भी सबके परिवार में नहीं थे। ठीक है, तो हम देखें कि वो जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे। तो अभी उनके भी जीने का प्रमाण नहीं आया है। जो पहले लोग जीते आए हैं उसका अगर प्रमाण आया होता तो ये लाल निशान क्या इस विसनगर की सभा में बैठे हुए लोगों के कारण है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग है क्या इस विसनगर के ये 200-250 लोगों के कारण है? ये तो पीछे से आ रहा ना परंपरा से। अगर धरती तापग्रस्त हुई है, धरती का पानी खराब हुआ है, धरती का हवा खराब हुआ है, मिट्टी खराब हुई है, तो उसका मतलब पीछे से गलत कुछ हुआ है। तो वो जिंदा थे कि जी रहे थे, आप खुद देख लीजिए।
ठीक है, तो डॉक्टर इंजीनियर मतलब ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो पद की बात हम कर रहे हैं। जब भी डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहे हैं तो पद की बात कर रहे हैं। मतलब हमको सम्मान का कोई तरीका नहीं है तो हम पद से सम्मान कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर क्या है? कल आर्या बोली थी डॉक्टर किस लिए बनना है कि भाई शरीर है तो बीमार होगा, शरीर है तो बीमार हो ही सकता है, और इसकी बीमारी के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम ही जिम्मेदार हैं। हमारा आहार विहार बहुत अच्छा है लेकिन हवा ही खराब है, अब क्या करें? पानी ही खराब है, अब क्या करें? मैं अपने घर में बढ़िया आहार विहार से जीता हूं, किसी रिश्तेदारी में गया उन्होंने कुछ खिला दिया, अब क्या करें? ना खाए, नहीं जी मैं आपके घर नहीं खाऊंगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते, ये संबंध भी चलाना है। तो उससे मैं बीमार पड़ गया, तो बीमार हो सकता है लेकिन उस बीमारी को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं शरीर का अध्ययन नहीं किया हूं। तो कोई एक व्यक्ति है जो शरीर का अध्ययन किया है, उसको डॉक्टर बोलते हैं, वो इलाज कर देगा, ठीक हो गया। लेकिन उसको एक बड़ा पद बना दिया धीरे धीरे करके, डॉक्टर मतलब डॉक्टर क्या है? ये डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर आदमी है कुछ और है। तो उसको एक पद बना दिया, क्यों? क्योंकि उस पद से पैसा ज्यादा आता है। तो अभी बहुत सारे डॉक्टर जो हैं एक्चुअली डॉक्टर हैं नहीं, वो दवा की कंपनियों के गुलाम हैं। क्यों ऐसा जी? अधिकतर डॉक्टर बिक चुके हैं दवा की कंपनियों के हाथ। मेरे एक रिलेशन में डॉक्टर हैं, मतलब मेरी मौसी के लड़के हैं वो, तो अब वो भी वैसे ही बिके हैं। तो मेरी माता जी का एक बार तबीयत खराब हुआ, भैया ये वीडियो हमारे घर नहीं भेजोगे ना? तो मेरी माता जी का एक बार तबीयत खराब हुआ, तो मैं लेके गया, वो आया हुआ था, क्योंकि वो रहता मतलब नौकरी करता है 40-50 किलोमीटर दूर, नौकरी क्या अपना नर्सिंग होम खोला हुआ है, तो घर पे आया हुआ था। तो पिताजी फोन करके पूछे मौसा जी से, तो बोले हाँ आया है। तो हम लेके चले गए, माता जी को थोड़ी सांस वांस फूल रही थी, तो लेके गए। बोला भैया क्या? हमने कहा माता जी की तबीयत खराब है। अपना बीपी उपी नापा, जो भी लगाना था लगाया, धड़ाधड़ 12-13 दवाएं उसने लिख दिया। कितनी दवाएं? 12-13 दवाएं। जब पर्चा हमारी तरफ बढ़ाया तो हमने कहा अरे भाई ये तुम्हारी मौसी जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पर्चे को फाड़ के फेंका, डब्बे में डाला, तीन दवाई लिखा। फिर मैंने 10 दवाइयां फालतू थी। अच्छा, इनके पर्चे मेडिकल स्टोर पे चेक होते हैं, आपको पता नहीं होगा, आपको बहुत सारी जानकारी नहीं होगी। डॉक्टरों के पर्चे मेडिकल स्टोर पर उन कंपनियों के एजेंट फोटो खींचते हैं। अगर उन्होंने किसी दूसरी कंपनी का दवा लिख दिया है तो फोटो खींच करके डॉक्टर को व्हाट्सएप करते हैं, आपने इस कंपनी का दवा लिखा है, ये देखिए आपका पर्चा, आपका एग्रीमेंट रद्द किया जाता है, अगला विदेश दौरा रद्द। हाँ, वो विदेश भेजते हैं, देश दुनिया घुमाते हैं और बोलते हैं 10 साल तक मेरी दवाई लिखो। तो एक्चुअली डॉक्टर दवाई बेच रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं। बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं, मतलब मैं जब ब्लेम कर रहा हूं तो किसी को पर्सनल नहीं कर रहा हूं, एक जो जनरल परसेप्शन है उसकी बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम डॉक्टर दवा की कंपनियों के हाथ बिक चुके हैं और वो दवाई बेच रहे हैं और टेस्ट बेच रहे हैं। आपकी बीमारी यहां है और जांच पूरे शरीर का कराएंगे, हमको भी अच्छा लगता है, चलो एक बार में पूरे शरीर की जांच हो गई, क्या जरूरत थी इतने जांच की? तो वहां से कमीशन, यहां से कमीशन। तो भैया, हाँ जी चाणक्य भाई, तो डॉक्टर एक पद है, पद से जोड़ दिया उसको, कोई बड़ी चीज बना दिया। क्यों? वो पैसा ज्यादा कमाता है। लोग बोलती हैं ये डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टरों की हालत बहुत खराब है, इनके घरों में ज्यादा झगड़े हैं। जो जितने बड़े पद पे है उनके घरों में ज्यादा झगड़े हैं। आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि ऐसे सारे केस हम ही लोगों के पास आते हैं। और वो इस सभा में नहीं बुलाते, कहां बुलाते हैं?
भैया थोड़ा आज टाइम है? हाँ भैया है। थोड़ा फड़ा होटल में आ जाते, साथ में चाय पियेंगे, 1 घंटे का टाइम निकाल के आइएगा। वहां आके अपनी पीड़ा बताते हैं, क्या करूं इसमें। तो ऐसे तो मानव को नहीं समझा, मानव को नहीं समझा, मानव के शरीर को समझा, वो भी आधा अधूरा समझा। कान के डॉक्टर अलग, नाक के डॉक्टर अलग, दांत के डॉक्टर बैठे हैं, दांत के डॉक्टर अलग, जीभ के डॉक्टर अलग, कुछ दिन में आएगा बाएं कंधे का डॉक्टर अलग, दाहिने कंधे का डॉक्टर अलग। आ जाएगा। तो बोलते हैं आजकल हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप ये बताइए, शरीर टोटल में मिला के एक व्यवस्था है कि अलग अलग व्यवस्था है? शरीर टोटल एक व्यवस्था है। दांत क्यों खराब होता है बताइए? आदमी का दांत क्यों खराब होता है? अब आप बैठे हैं तो आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। आदमी का दांत क्यों खराब होता है? बहुत सारे रीजन है, 2-3 रीजन बताइए। कुछ फूड हैबिट की वजह से भी होता है। कुछ फूड हैबिट मतलब जो खाना चाहिए वो नहीं खाता है। और फिर कुछ क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होता। सफाई नहीं रखता, हाँ, ये भी मानो कि ना समझिए। और मतलब मेन तो 2 ही रीजन है, फिर उसके अंदर होता है। हाँ, और अगर एसिड ज्यादा बनता है पेट में तो भी कहते हैं दांत खराब होता है। हाँ, तो एसिड क्यों ज्यादा बनता है? वो भी फूड हैबिट की वजह से। शरीर में एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है? फूड हैबिट। जो नहीं खाया, खाना है वो खा लिया। तो अगर हमने ऐसे शिविर चलाए और उसमें लोगों को खाना सिखा दिया, खाना केवल ठीक से सिखा दिया, तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी कि नहीं? तो कुल मिलाकर के मानव कंप्लीट शरीर एक कंप्लीट व्यवस्था है। मतलब कोई किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होगी, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, कोई हार्मोन का सिक्रेशन ठीक से नहीं हो रहा होगा, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अगर कान में कोई दिक्कत है तो एक्चुअली कान की केवल दिक्कत नहीं है, वो कोई हार्मोन की प्रॉब्लम होगी, कुछ और होगा। अगर किडनी में कोई दिक्कत है तो केवल किडनी की दिक्कत थोड़ी है, वो कोई आपके आहार विहार की दिक्कत है। तो शरीर को जब भी समझा गया होगा तो कंप्लीट ही समझा गया होगा। लेकिन दुकानें अलग अलग लगा दिया, दुकानें अलग अलग लगा दिया, क्योंकि एक डॉक्टर को आप फीस दोगे तो 400 दोगे, 500 दोगे। अब हाथ का अलग दोगे तो 500 दोगे, पैर वाले को अलग 500 दोगे, लीवर वाले को अलग 500 दोगे, किडनी वाले को अलग 500 दोगे। तो एक ही शरीर के बहुत सारे फीस देते हैं। तो एक्चुअली शरीर को एक व्यवस्था के रूप में नहीं समझा गया। तो शरीर को क्या समझा गया? तो मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? दर्द को क्या बोलते हैं? दर्द को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं दर्द अच्छी चीज है। दर्द होता है तो आपको उस अंग का होश आता है, दर्द नहीं होता है तो आपको उस अंग का होश नहीं रहता। तो कोई बीमार दर्द हो ये अच्छी बात है, उससे बीमारी पता चलती है। दर्द ही ना हो तो बीमारी पता नहीं चलती। जैसे दांत में दर्द नहीं हो रहा तो क्यों आएगा आपके पास? तो बोलते हैं दर्द से आपको उस अंग का उस अंग का ज्ञान होता है, समझ आती है, मतलब ध्यान जाता है, नहीं तो उस अंग का ध्यान ही नहीं जाता आपको। तो कुल मिला के क्या है? शरीर एक व्यवस्था है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हिमांशु भाई? तो मानव को आप टुकड़े टुकड़े में नहीं समझ सकते, मानव को भी टुकड़े टुकड़े में नहीं समझ सकते, और अस्तित्व को भी आप टुकड़े टुकड़े में नहीं समझ सकते। तो इसको बोलते हैं समझना होल टू पार्ट होता है। समझना होल टू पार्ट। पूरे को समझ करके मैं अपने को समझ पाऊंगा।
जीना पार्ट टू होल होता है। मैं जीता हूं, परिवार में जीता हूं, समाज में जीता हूं, प्रकृति के साथ जीता हूं, अस्तित्व में जीता हूं, ये जीना होता है। तो जीना पार्ट टू होल होता है, समझना होल टू पार्ट होता है। अगर मैं इस पूरी मशीन को समझूंगा, इस पूरी मशीन को समझूंगा, तो इसमें मैं स्वयं को समझ पाऊंगा, तो मुझे अपनी भूमिका समझ में आएगी। अगर इसमें पूरे को नहीं समझता हूं तो मुझे अपनी भूमिका समझ में नहीं आती। फिर वही समझ में आ जाती है, आहार निद्रा भय प्रजनन करो, इसी से सुखी हो। तो समझना हमेशा होल टू पार्ट होता है। जैसे किडनी को समझना है तो शरीर के साथ समझेंगे या किडनी को अलग निकाल के समझेंगे? बताइए। शरीर एक व्यवस्था है ना, तो शरीर की व्यवस्था में अगर किडनी को समझना है तो किडनी को अलग काट के निकाल के समझेंगे या शरीर के साथ समझेंगे? बढ़िया से कब समझ में आएगी? जब शरीर के साथ समझेंगे। क्योंकि पूरे शरीर एक व्यवस्था है, उसमें वो भागीदारी करता है। अलग से समझेंगे तो क्या समझ में आएगा? अलग से तो कोशिका है वो। किडनी क्या है? सेल है। अलग से समझेंगे तो क्या समझेंगे? मांस का लोथड़ा है, सेल है, उसको क्या समझेंगे? लेकिन शरीर में लगा हुआ समझते हैं तो समझ में आता है। तो इस तरह से मानव को समझना होगा तो पूरी व्यवस्था को समझना होगा, उसमें मानव समझ में आएगा, मानव की भूमिका समझ में आएगी। अभी तक हमने यही समझा है, अभी तक हमने यही समझा है, केवल जितनी बात हुई है कि मानव है, मानव सुख पूर्वक जीना चाहता है, निरंतर सुखी उसकी प्यास है, सुख के लिए ही वो गलतियां कर रहा है। अभी तक सुख के लिए गलतियां कर रहा था लेकिन तब भी सुखी नहीं हो रहा था। ये ध्यान गया कि जितना सुख उसको चाहिए उतना सुख उसमें मिलता नहीं है, इसलिए वो बार बार वो गलतियां करता है, बार बार सुखी होने का प्रयास करता है, फिर गलतियां करता है, फिर सुखी होने का प्रयास करता है, सुखी होता नहीं है, इसलिए गलतियां करता रहता है। एक समय बाद जब समझ में आता है स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, समाधान ही सुख है, प्रश्न मुक्ति ही सुख है, तो मुझे पूरा ही समाधान चाहिए, पूरा ही समझ चाहिए। ऐसी समझ हो जाती है तो सुखी होने की संभावना बनती है, और जो ऐसी समझ हो जाती है वो मेरे में बनी ही रहती है, अर्थात मेरे में निरंतरता हो जाती है। मेरे में निरंतरता हो जाती है तो मेरे निरंतर सुखी होने की संभावना हो जाती है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, अब आप लोग सीख गए हैं क्या बोलना है। चलिए, तो मेरे तरफ से आज की सभा को विराम देते हैं। आज की सभा में आप लोग सहयोग बनाए रखें, सुबह से शाम तक बैठे रहे, समय पर उपस्थित होते रहे, और मुझे गुजराती ना आते हुए भी मुझे सुनते रहे। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, कल मिलते हैं।